আর কারণ মুসলমানের হালত কি হতাম জিকা জানা জরিকা শান্তি নদী খিলাম যে দেশত 350 বছর মুসলমানের হুকুমত শুনিলাম এই দেশত রোজার বই মা বোনেদের ইজ্জত দিলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দেশ বিদেশ টিভি সৈন্য ভাই বিনেন বেগুনের সালাম। বহুত ভাই ইন্ডিয়া পার্সোনাল ভাবে ফোন করি বা মেসেজ করি ইন্ডিয়ার হালত দরবারে ফুসাল্লো ইন্ডিয়ার হালত মুখে হনত আর ওনার কান ভিডিও ফোনাই যেন তো আমরা বালা করে বুঝি পারিবেন কি হইব আলহামদুলিল্লাহ চলের। আসলে ইন্ডিয়া অধিয়ান কান বড় দেশ 29 রাজ্য আছে এলে বিহার উত্তরপ্রদেশ যেন আছে মহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশ যেন আগে হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানা দেশে এন রাজ্য যেন একখান বাংলাদেশের সমান নহলে কি করে সড় বেন্ডিল্লা তবে খাস করে বিহার যে উত্তরপ্রদেশ যেন আছে বাংলাদেশের বরাবর। তো প্রত্যেক 29 রাজ্য 5 বছর হুকুমতের আমল তাইলে কোনো একখান 4 মাস পরে 5 মাস পরে রাজ্যর একসাথে 4-5 স্টেটের ইলেকশন এই হিসাবে সিয়াসি মুদ্দাইন হামকা প্রত্যেক জায়গার থাকে প্রত্যেক স্টেটের থাকে প্রত্যেক সিয়াসি জামাত লইয়ে থাকে তিয়ান লইয়ে পরেশানো জরুরত নাই। তবে আরা জেন্ডিলা মনে করির ফলানা গিলই ভালো হইব অমুকাইলে ভালো হইব সিয়াসত দিয়ান এনেকেন জিয়ানোর মধ্যে দাহাদা দিয়ান ন অদিয়ান দাহানো যা ইয়ানোর নাম সিয়াসত। আজ ইয়ারা 2014 ফরলতি যা কিছু পার্লামেন্টের মধ্যে ফোনের আওয়াজ আতলাতে যদি ইতারা পার্লামেন্ট ন তাহলে টাকান মুশকিল হইব কিয়া ইতারা যাতে অপোজিশন হিসাবে হইব তাহলে তোমার ঘর পর্যন্ত আইতারে কুড়ি পর্যন্ত আইতারে। আর যদি তারা ক্ষমতাসীন হইলে ইতারা তো জিন আছে জেন্ডিল্লা পাওয়ার আছে ইন্ডিল্লা গরিব দে খান উনি তরিকা লইবার হইব। ইন্ডিয়ার মধ্যে জমহুরিয়ত আরো বেশি আছে গণতন্ত্র বেশি আছে অন্য দেশের বনিসবতে সময় হইলে একজের দুর্হম্ন এই হিসাবে কোর্টের মাধ্যমে আহরিব কোর্টের মাধ্যমে আইতে সমলাইব। হ্যাঁ শুধু যদি ঘর পর্যন্ত আয় দেখি পাইলে বা রোহিঙ্গা টাকে দিয়ে ঠাল পর্যন্ত আয় দেখি তাইলে আর দেরি নগরে এরিয়ার যেবা উজিরে দাখেলা আছে এবার বয়ান শুনাই যেন কয়েকদিন আগে উত্তরাখণ্ডের মধ্যে দিয়ে। मित्रों, अभी हरीश रावत जी ने यहाँ पर कहा है कि हम यहाँ उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए। मैं आपको पूछने आया हूं भाई, आप मुझे बताओ मां सरस्वती के धाम में यूनिवर्सिटी में कोई धर्म का काम होता है क्या? जरा जोर से बोलो, होता है क्या? एक तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है और उत्तराखंड के पहाड़ों पर अब रोहिंग्या दिखना शुरू हो गए हैं। मित्रों, रोहिंग्या मुस्लिमों को घुसाने का काम उनके नेतृत्व में चल रहा है। मगर मैं आपको वादा करने आया हूं, आप पुंडीर साहब को जिता दीजिए, हमारे धामी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। সিয়াসি কিছু জামাত হলে পার্টি হলে উত্তরাখণ্ডের মধ্যে মুসলিম ইউনিভার্সিটি বানাইব হইয়ে ইতারা তো তার খবর কোনো হতা নাই জিয়ান মন্দির মসজিদ জিয়ান আসলিয়ান মশলা হল গিয়ে তারার পক্ষে ফাইসলা হলিও তো এই হিসাবে সমাজম রোহিঙ্গা হল আসো রোহিঙ্গা হল নিজরে দূর দৈন্য বলে মনে করো জেহে কিসমত বলে মনে করো তোমার হতালে তারা সমাজম ইলেকশন চালাই থারের তাহলে ইয়ান সম্ন আর কিছু নাই দিব হড মুসলিম ইউনিভার্সিটি আর হডে রোহিঙ্গা মুসলিম ইয়ার মধ্যে আরো এন্ডিল্লা হইয়ে দে মহলরে খুশি গরিবর আমল হইয়ে জিকির রাখিব তাহলে ইয়ানলা আসলে আর কিছু বাজাইয়ে নাই আর হতুন ফেরুল্লাহ। তবে ইতারার যে গিয়ার সমত ইলেকশনের সমত ফেরুল্লাহর নামত লহরের তাহলে হদ্দুর মজবুর হইয়ে বা হদ্দুর লাশার ইয়ানো আমরা এই বয়ানত বুঝিত কারণ ইয়ানোর দ্বারা পেরেশান হওয়ার কোনো জরুরত ন। চ্যানেলওয়ালা যিবা আছে চ্যানেলর যিবা এঙ্কার আছে ইবে ইয়ে রোহিঙ্গার হাকিকতরে রোহিঙ্গার তারিখরে বেশি সুন্দর করে জিকির করছে ইয়ানো কি ফুরসাফ শুনিলই
नमस्कार, मैं नियाज खान। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में आपने पहले जरूर सुना होगा। एक बार फिर से ये चर्चा के केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से इस मुद्दे को उठाया है। शनिवार को उत्तराखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इन्हें लेकर कांग्रेस पर हमला किया और आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के पहाड़ों में रोहिंग्या मुसलमानों को घुसाने की साजिश रच रही है और ये साजिश मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों का मसला कोई नया मसला नहीं है। इस मुद्दे को पिछले काफी समय से उठाया जाता रहा है। बीजेपी का इन्हें लेकर रवैया सख्त है। बीजेपी देश को इनसे खतरे का हवाला देकर खुलकर इन्हें देश से बाहर करने की बात करती रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये रोहिंग्या मुसलमान, ये कहां से आए हैं, क्या वाकई देश को इनसे खतरा है? आइए आपको इस वीडियो में ऐसे तमाम सवालों का जवाब देते हैं। आखिर कौन है ये रोहिंग्या मुसलमान? रोहिंग्या मुसलमान यानी कि बर्मा के मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। ये बांग्लादेश की सीमा से लगे पश्चिमी म्यांमार में भौगोलिक रूप से अलग थलग पड़े रखाइन क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में रहते हैं। रोहिंग्या म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय से जातीय, भाषाई और धार्मिक रूप से अलग हैं। रखाइन म्यांमार का सबसे कम विकसित क्षेत्र है। इसमें 78% से ज्यादा परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। लगभग 11 लाख रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में रहते हैं। रोहिंग्या को मान्यता क्यों नहीं देता म्यांमार? ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर रोहिंग्या को म्यांमार मान्यता क्यों नहीं देता? तो चलिए आपको बताते हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द स्टेटलेस के मुताबिक 1824 से 26 में अंग्रेजों ने रखाइन क्षेत्र पर कब्जा किया। इसके बाद उसने भारत से इनके प्रवास को बढ़ावा दिया। म्यांमार में बाद में बनी सरकारों ने यह रुख कायम रखा कि रोहिंग्या भारत और बांग्लादेश के अवैध प्रवासी हैं। वह इन्हें देश के 135 जातीय समूहों में से एक के रूप में मान्यता देने से इनकार करता रहा है। वहीं काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार सरकार के रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता का दर्जा न देने से यह एक तरह से स्टेटलेस हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनका कोई मुल्क नहीं है। 1982 में जुंटा के सैन्य शासन में रोहिंग्याओं से प्रभावी तौर पर म्यांमार की राष्ट्रीयता और बुनियादी अधिकार खत्म कर दिए गए। रोहिंग्याओं के साथ म्यांमार में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति भी स्टेटलेस हो गए। हालांकि वो पीढ़ियों से देश में रह रहे हैं। भारत सरकार के अनुमान के मुताबिक म्यांमार में करीब 25 लाख PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्ति हो सकते हैं। 1990 में रोहिंग्या मुसलमानों को आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए। इसे व्हाइट कार्ड भी कहा जाता है। यह उन्हें टेम्पररी सिटीजन की कैटेगरी में रखता है। आखिर क्यों म्यांमार छोड़ भागने लगे रोहिंग्या? 25 अगस्त को रोहिंग्या चरमपंथियों ने म्यांमार के उत्तर रखाइन में पुलिस पोस्ट पर हमला कर दिया था। इसमें 12 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद सेना ने इनके खिलाफ बेहद क्रूर अभियान चलाया था। तब से म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन जारी है। कहा जाता है कि इन्हें खदेड़ने की मंशा से उनके गांव जला दिए गए। हमले हुए। इसके बाद इन्होंने बांग्लादेश का रुख किया। रोहिंग्या को लेकर भारत का क्या रहा है रुख? भारत सरकार ने कुछ रोहिंग्या को लॉन्ग टर्म वीजा दिया है। भारत का इस मुद्दे पर साफ रुख है। वह इसे म्यांमार का आंतरिक मसला करार देता है। इनमें से बड़ी संख्या में बांग्लादेश के रास्ते भारत में गैर कानूनी तरीके से भारत आए हैं। सरकार किसी भी तरह के गैर कानूनी प्रवास के पक्ष में नहीं है। बीजेपी क्यों करती है विरोध? अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी इनका विरोध क्यों करती है। बीजेपी और हिंदू संगठन कहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को पूरी योजना के साथ उत्तराखंड में बसाया जा रहा है। बद्रीनाथ, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे क्षेत्रों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। हिंदू संगठनों को शक है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। उन्हें इसके पीछे भूमि जिहाद का भी डर है। वो आरोप लगाते हैं कि राज्य के पहाड़ी इलाकों में हिंदू अपने घरों को छोड़ रहे हैं, वहीं बाहर से आए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुओं की जमीनें खरीद रहे हैं। इस तरह उन्होंने अस्थायी तौर पर यहां रहने का रास्ता खोज लिया है। तो इस तरह से बीजेपी रोहिंग्या मुसलमानों का हमेशा विरोध करती रही है और इसका लाभ भी उठाने की कोशिश करती रही है।
ভালো করে ফুন্নন্দ হইব। তো ইন ইলেকশনের মুদ্রা ইন লিয়ে বেশ টেনশন করে লাভ নেই। যারা কানুনত আসন কানুনত বাজ্যন কেউ হুঁশিয়ারে তাইবান আর শনিকে নইয়া করি কানুনত বাজি বললা খুশি নকরিবেন কে ইন্ডিয়া এনেকান জায়গা যে কানুনত বাজি রেহাই নফা দে এর ভিতর বেশি শক্ত কানুনত বাজিলে এরিয়ার মানুষে কানুনের কিভাবে ডরা ইয়ান এডে যারা থাকিয়ে বা এরিয়ার মানুষের মিললে তারা হয়ে পারে এডে জিন আদালতের মধ্যে কেসল চলে বেশি দেরি ফোন চলে যে দ্বারা পুরা খানদান খেলার হয়ে যাবে। তো এত লেডিয়ার মানুষ কানুনের বেশি ডর অন্য অন্য দেশল আছে যেটা ঠিয়ার ওরে কানুন নেওয়ারে কানুনের ওর তো ঠিয়া এতলা গঙ্গর হুঁশিয়ার তাইবান বেশি টেনশন নলইও। তবে যে জিয়াত আসনির মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ রসুল রাজিও দেন দিল্লা আমল করিবেল্লা মুসরফুল কলু বলে দে ওরে আল্লাহ হুসমান তালা প্রত্যেক দিলর মালিক দিলরে ফিরাই দইনা আর যদি নিজের হালত বিগাড়ি দিতে হইলে থামাকা আল্লাহ আর হালতও বিগাড়ি দিব। আর যদি নিজের হালত বিগাড়ি বললা নিজের হালত খারাপ করি বললা রাজি করিয়ে দিতে হইলে বা ইন্ডিলে আমল করে দিতে হইলে আল্লাহ নিশ্চয় বদলে দিব। আর নিজের নিজে জুলুম করিবার আগতো আল্লাহ কোনোদিন জুলুম করি বললা নচাইব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।